वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होती है तो आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Chapter number 5, classification of elements and periodic properties. I hope all of you are studying this chapter. That is chapter number 5. Why there was a need of classification of elements? As already I have taught you the main things, today we are going to discuss about it. One by one we will solve all the doubts also related to this chapter. First of all, just listen the concept, whatever I am explaining it. If you have any doubt related to that concept, then please raise your hand. First thing, the classification of elements was based on metals and non-metals. Starting में metal और non-metal को ही बेस मान करके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, क्योंकि उस समय एलिमेंट्स मैक्सिमम देयर वाज ओनली 30 एलिमेंट्स. After that, as the number of elements started increasing, few of the scientists have just given their classification idea. The first scientist name was Dobereiner. He has given his Trade's law. Dobereiner Trade's law. He has just taken three elements in a group, and he had said that first and third elements atomic mass average will be the second one's atomic mass. He had taken lithium, sodium and potassium. He had said all the elements periodic property will be based on atomic mass. Periodicity, he has just given the periodicity main property will be atomic mass. He has taken some of the elements, 39 atomic mass of potassium, 7 atomic mass of lithium. He had just done the average of the first and third elements, and he had got the second element's atomic mass. So he was very happy as he had given the concepts of making periodic table. But as he had moved ahead in the second group, 17th group and 18th group, so what he had seen that his conspiracy, whatever he had informed in the first group, third group and 17th group, it was little bit different. Why it was different? As he had taken the same thing in the second, it was just 0.5 difference. But he had thought because of the periodicity and the properties must match in group. As you can see, we are having 3 groups, boys, girls, and this one is mixed group. So question is what? Sitting arrangement I am talking about. Don't think else. कल का 115 से बोला ओनली एनटीसी वाले को कल आना है, और परसों 140/2 4 होगा. इंग्लिश फॉलोड बाय मैथ्स है, बराबर है. सिर्फ कल एनटीएससी वाले को ही आना है. इंग्लिश જેને છે ને યાર એટલી બુદ્ધિ વાપર ને આલેલા કપડા મારેલી બુદ્ધિ. Now as he had taken the second group elements, after that he had taken the halogens group elements, he had got differences. As he has taken this group, it was magnesium, calcium and strontium. But that time the elements were only 30 developed. So that's why he had taken some of the elements which were developed. So according to that what he had seen that first and third elements average atomic mass is not matching to the third one. But the properties were matching, that physical and chemical properties were in the group. So Dobereiner theory was limited. The limitations of Dobereiner theory came that it was not matching, that first and third elements atomic mass average was not matching to the second one. So these were the limitations of Dobereiner Trade's law. Dobereiner Trade's law was only able to follow the first group, lithium, sodium and potassium. Second, third, fourth, it is represented in your NCERT textbook. You can see Dobereiner Trade's law table. दिख रहा है आप लोगों को Dobereiner Trade's law का टेबल 3 करके एलिमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट, थर्ड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 करके एलिमेंट्स दिया था उन्होंने. और उन्होंने देखा कि 1-2 में उनका प्रॉपर्टीज मैच किया, बाकी में प्रॉपर्टीज मैच नहीं किया, जिस कारण से Dobereiner Trade's लॉ फेल हो गया. सेकेंड, उसके बाद आया न्यूलैंड साहब. न्यूलैंड साहब का कंसेप्ट था म्यूजिशियन कंसेप्ट. सारे गामा पाधा नी सा, मतलब पहला लेटर और 8वां लेटर. कितने लोगों को म्यूजिक ज़्यादा पसंद है?
कभी किसी ने हारमोनियम बजाया है, पसंद वाले बजाए कभी हारमोनियम? तो उसमें देखना, पहले हम लोग के जो म्यूजिक टीचर होते हैं पहला सिखाते हैं, फर्स्ट सरगम सिखाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, उसके बाद दो दो करके सिखाते हैं, सा सा रे गा गा मामा पापा, इस तरह से सिखाते जाते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि न्यूलैंड साहब म्यूजिक के बेस पर इसलिए ये, क्योंकि उस समय भी ज़्यादा एलिमेंट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, 52 से 56, क्योंकि धीरे धीरे एलिमेंट्स डेवलप होते जाते हैं। न्यूलैंड साहब का एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट लेकर के उन्होंने, देखो साइंटिस्ट का क्या होता है हमेशा याद रखना, कोई भी लिमिटेशन होने के बाद दूसरे साइंटिस्ट तुरंत उस पर काम करने लगते हैं। तुम लोगों का अगर मान लो मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हो और किसी एक स्टूडेंट का कहीं पर मान लो फंस गया, उसका आंसर नहीं मैच कर रहा, तो वहाँ से दूसरा स्टूडेंट तुरंत बनाना स्टार्ट कर देता, उसका आंसर मैच हो जाता है। कभी कभी वो दूसरा मान लो बीच में कहीं भी फाका भी मार दिया फिर भी आंसर मैच हो गया, तो वो उसका लिमिटेशंस बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर न्यूलैंड साहब ने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी और वापस से सा, तो इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका प्रॉपर्टीज सेम, मतलब इन्होंने कहा जिस तरह से ये सा वापस सा आएगा तो एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना है, उसका भी बस एक ही उन्होंने क्या किया कि पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, उन्होंने एटॉमिक मास को लिया। तो न्यूलैंड साहब ने कहा कि देखिए हम लोग इस तरह से एलिमेंट्स को रीअरेंज करेंगे कि हमारा जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज से मैच करेगा। तो आप लोग देखना, फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने हाइड्रोजन को लिया, राइट, सेकेंड एलिमेंट उन्होंने लिथियम को लिया था, थर्ड एलिमेंट उन्होंने बेरिलियम को लिया, फिर बोरन को लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नीचे में उन्होंने फ्लोरीन दिया। उसके बाद उन्होंने सोडियम दिया। तुम बोलोगे सर नियन कहाँ चला है? उस समय इनर्ट गैस का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनर्ट गैस के लिए उन्होंने स्पेस भी नहीं छोड़ा था। उनको पता ही नहीं था कि फ्यूचर में, अगर मान लो तुम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में, तुम लोगों को पता है 11th स्टैंडर्ड में कितना सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। अगर नेक्स्ट टाइम 2021 और 22 में अगर तुम लोग साइंस स्ट्रीम लिया तो तुम लोगों को पता है कितना होने वाला है, मतलब एक्सटेंड, या इस बार जितना पूछा है उतना ही पूछेगा या फुल पूछेगा, ऐसा कुछ तो पता नहीं है। तो रीज़न क्या था? क्योंकि फ्यूचर का डेवलपमेंट नहीं पता था कैसे हो। उसी तरह फ्यूचर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, न्यूलैंड साहब को ये पता नहीं था, उन्होंने स्पेस वेस कुछ नहीं छोड़ा, जितना एलिमेंट्स था उतने को उन्होंने अरेंज किया। तो यहाँ पर उस तरह से वो बढ़ते गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और उसके बाद जो जो एलिमेंट्स डेवलप था उसको उन्होंने अरेंज किया। और सही में देखा गया इस सब के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये सब लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले थे, ये सब 2 डोनेट करने वाले, 3 डोनेट करने वाले, 4 डोनेट करने वाले, 3 लेने वाले, 2 लेने वाले, इस तरह से एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के थ्रू। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, फ्यूचर में डेवलपमेंट हुआ इनर्ट गैस एलिमेंट्स का, उन्होंने स्पेस छोड़ा नहीं था। दूसरा, उन्होंने ग्रुप वाइज में अगर मान लो किसी का प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा है तो एक ही ग्रुप में वो 2-2 एलिमेंट्स को रखना चालू कर, सब ग्रुप बना दिया। जैसे हम लोग का होता है ना, अगर मान लो किसी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हो जाता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में मान लो हमारे पास 290 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स सेक्शन ए, 40 स्टूडेंट्स सेक्शन बी, इस तरह से सेक्शन एफ जी तक जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे उन्होंने देखा कि नहीं एक ही प्रॉपर्टीज वाले हैं, इसमें दूसरे में डालेंगे और एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस कारण से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में ही 2-2 एलिमेंट्स को अटैच करना चाहिए। तो देखोगे तुम लोग कि उनके ग्रुप में ही स्टार्ट हो गया था पोटाशियम और नीचे में कॉपर होगा। तो ये देन था न्यूलैंड साहब का कि अगर प्रॉपर्टीज मैच करती है तो आप एक ग्रुप में 2-2 एलिमेंट्स रख सकते हो, खाली सब ग्रुप डिवाइड करना होगा। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ जिनका प्लेस इन्होंने निर्धारित नहीं किया था कि कहाँ पे इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होते हुए भी उनको पहले पोजीशन में रखा गया। तो ये सारे लिमिटेशंस थे न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब वैसे बहुत ही, देखो यहाँ पर ये पढ़ने का रीज़न जानते हो, वी शुड नेवर फॉरगेट एनीवन्स एफर्ट इन अवर लाइफ। तुम्हारे जीवन में भी 10th तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स का सहयोग
तो ये हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है। वैसे तुम लोग बोलोगे कि सर जब इसका पढ़ना ही नहीं था, पढ़ना हम लोगों को मोस्ले का ही पीरियोडिक टेबल है, तो ये सब पढ़ के फायदा क्या? अरे डेवलपमेंट तो इन्हीं लोगों ने किया था ना। बाद में कोई साइंटिस्ट आया, हो सकता है कि मोस्ले के बाद कोई और साइंटिस्ट आए और वो नया थ्योरी दे दे, बोले कि इस एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज नहीं होगा, कुछ और प्रॉपर्टीज होगा, तब तो पूरे के पूरे साइंटिस्ट। लेकिन डेवलपमेंट तो डॉबरेनर से स्टार्ट था, उसके बारे में हम लोगों को रिमाइंड रखना चाहिए। इसीलिए पीरियोडिक टेबल हम लोगों को एक नॉलेज देता है कि whoever have done effort in our life we must never forget that। ये था न्यूलैंड्स का लिमिटेशंस। अब आ जाइए मेंडलीफ, सबसे बड़े फादर इनको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि उस समय तक 63 या 62 एलिमेंट्स का डिस्कवरी होती थी। 63 एलिमेंट्स, क्योंकि देखो होता क्या है कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाते हैं, जब वो जिस समय में वो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं उस समय को लिया जाता है कि वह 63 और तुरंत नेक्स्ट डे एक और एलिमेंट डेवलपमेंट हो गया तो 64 हो गए। तो जिस समय उन्होंने बनाया उस समय 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने सारे साइंटिस्ट जो पीछे जितने इन्होंने डेवलपमेंट किए थे, जो दिया था और जिस कारण से जिनका थ्योरी फेल हुआ था, जो लिमिटेशंस थे, चाहे डॉबरेनर के, न्यूलैंड्स के या मेटल नॉन मेटल जिसने बनाया था उसके, उस सारे थ्योरी को उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक अपना न्यू थ्योरी दिया। पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स होंगे और 6 पीरियड्स होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिस्कवर उस समय में नहीं हुआ। तो ये मेंडल साहब ने पूरे होशो हवास में अपना दिमाग को शांत किया कि अभी तक जितना एलिमेंट्स है और जो थ्योरी जिस साइंटिस्ट का फेल हुआ है उसको एडॉप्ट करके कि अगर फ्यूचर में ये लिमिटेशन मेरा नहीं होना चाहिए। होता है ना, हम लोग अगर मान लो कोई स्टूडेंट आवाज़ करता है और टीचर जाके खींच के एक थप्पड़ मारता है तो बाजू वाला शांत हो जाता है, मुझे आवाज़ नहीं करना चाहिए थी तो टीचर मुझे भी थप्पड़ मारे। लिमिटेशंस ऑफ दैट स्टूडेंट, वो उसका लिमिटेशन हो गया कि मेरे अंदर ये लिमिटेशन नहीं आनी चाहिए। तो उसी तरह से मेंडलीफ ने सारे साइंटिस्ट का लिमिटेशन ले लिया और उसने टोटल फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 का एक लंबा सा ग्रुप बनाया, जिसमें इन्होंने 3 सेक्शन दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बाकी सब में इन्होंने 2-2 सेक्शन दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसको सब ग्रुप का नाम दिया गया। टोटल 6 पीरियड का इन्होंने फॉर्मेशन किया था उस समय में, और जो प्रॉपर्टीज मैच कर रहे थे पिछले साइंटिस्ट के, जैसे न्यूलैंड्स का एक प्रॉपर्टी था कि 2-2 ग्रुप को हम रख सकते हैं, तो इन्होंने सब ग्रुप नाम दे दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी के पीरियोडिक टेबल में देखो ये देने के पीछे एक रीजन है, ये जो सब ग्रुप उन्होंने बनाया या 2-2 एलिमेंट्स दिए थे, तो देखना तुम पोटेशियम के नीचे में कॉपर उनका जो दिया हुआ है, कॉपर के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और पोटेशियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो दोनों का पीरियोडिसिटी मैच करे। जैसे सेक्शन ए देखना, स्कूल में जनरली सेक्शन ए कैसे बनाते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जितने भी हो गए ना वो सबको एक सेक्शन में दे देते हैं। रीज़न क्या होता है कि मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए, तब जाकर के वो उस सेक्शन का बच्चा है। जनरली ऐसा माना जाता है सेक्शन सी के बहुत ही डल स्टूडेंट, और कभी कभी लेट एडमिशन होता है और सेक्शन सी में चला जाता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तो वो उसका लिमिटेशन बन जाता है। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पर जो मेंडलीफ ने क्या किया, जितने एलिमेंट्स को न्यूलैंड साहब तक डिस्कवर हो चुका था उन्होंने सब चीज़ को मैच किया और सबको सारे एलिमेंट्स को देख लेना तुम लोगों का मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने बनाया था, जिसमें 8 ग्रुप्स। लास्ट ग्रुप में इन्होंने आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रूडियम, रहेडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, ये 3 को अष्टक नियम का है, ऑक्टेट। फेंको नहीं रहो रहो पत्नी उड़ीसा इंदौर पटना, इसको लर्न करने का तरीका हम लोग जब लर्न करते थे तो हम लोगों को एक अलग, हम लोगों का जो टीचर था वो अलग फॉर्म में सिखाता, बोलता था बेटा शॉर्टकट करके किसी भी एलिमेंट्स को शॉर्ट करके लर्न करो। और मैंने जो ट्रिक बनाया वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को एक स्टेज मतलब एक सांस में बोलो तो पूरा पीरियोडिक का एलिमेंट्स नाम के साथ लर्न सुना। तो ये अपना अपना सबका ट्रिक होता है। तुम लोग भी सोचोगे कुछ नया ट्रिक डेवलप करें, जिस तरह से मेंडलीफ ने डेवलप किया था। मेंडलीफ ने अब सारे एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दिया। फर्स्ट ग्रुप ने उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम,
रुबीडियम, फ्रांसियम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पोटाशियम के नीचे में इन्होंने कॉपर रखा, कॉपर के नीचे में सिल्वर रखा। इस तरह से जो जो एलिमेंट्स डेवलप थे उन्होंने अरेंज कर। अरेंज करने के बाद कुछ स्पेस उन्होंने वैकेंट भी छोड़ दी कि जिसका मान लो अगर दो एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं था, इस एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो स्पेस खाली छोड़ दी। और बहुत सारा ऐसी जगह पे स्पेस खाली छोड़ा जहाँ पे हर एक ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए ना। सब ग्रुप में मान लो नहीं है एक एलिमेंट, लेकिन ग्रुप में तो एक एलिमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने स्पेस छोड़ दी। तो दूसरे को अगर मान लो लिमिटेशन होता है तो अपना एडॉप्टेशन कर लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर बाजू वाले को थप्पड़ लग जाए तो खुद शांत हो जाना चाहिए चुपचाप। क्यों? क्योंकि सर मुझे भी मार सकते। लिमिटेशन, तो यहाँ पर लिमिटेशन मिला था न्यूलैंड्स का, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ, और बाद में इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो गया तो उस कारण उसका थ्योरी फेल। तो इसने क्या सोचा, मेरा थ्योरी फेल ना हो इसलिए मैं कुछ स्पेस छोड़ दूं। भविष्य में, फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका प्लेस यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में कोई एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा था, तो उस समय उसने दिमाग लगाया तो फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका प्लेस एक इनका थ्योरी ना फेल हो। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट उन्होंने लगाया कि मेरी थ्योरी फेल नहीं हो। बहुत ज़्यादा एफर्ट भी किया था उन्होंने। इंग्लिश के प्रोफेसर थे, केमिस्ट जॉब करते थे, फिर इतना डेवलपमेंट बना। आज के डेट में रिसर्च वाले स्टूडेंट कितने हो? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहिए? कोई नहीं जानता। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए या फिर तुम लोग IAS, IPS, IAS, इससे ज़्यादा लोगों की थिंकिंग स्किल है। क्यों पता है? हमारे इंडिया में वैसे फिल्म ही नहीं होती जो थिंकिंग के लिए मजबूत है। फॉरेन कंट्रीज में जाओ, USA में जाओ, अलग जितने भी कंट्रीज है, साइंस फिक्शन फिल्म होते हैं। वहाँ पे साइंटिस्ट के लिए स्टूडेंट को प्रेरित किया जाता है कि यू शुड बिकम साइंटिस्ट। हमारे यहाँ साइंटिस्ट का मतलब लोग एक ही समझते हैं, पागल है। साइंटिस्ट मतलब पागल। लेकिन हकीकत में थिंकिंग स्किल डेवलप साइंटिस्ट है। तो कितने लोगों का थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाता है? देखना, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछेंगे कि पता चलता है कि ही हैज अ लॉजिकल थिंकिंग स्किल। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना सोचे समझे पूछ लेते हैं, चैप्टर से कोई उसका लेना देना नहीं। पता है कि नहीं होता? दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपना डेवलप किया और कुछ ऐसा चीज डाल दिया कि लोगों का थिंकिंग स्किल वहाँ पे मैच ही ना। क्या? तो यहाँ पे इन्होंने भी न्यूलैंड्स वाला प्रॉपर्टी मैच कर दिया। आयोडीन का एटॉमिक मास और उससे पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, पहले वाले एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है और आयोडीन का कम। निकेल और कोबाल्ट को उन्होंने लिया यहाँ पर कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, निकेल का एटॉमिक मास कम है, इसको पहले रखना चाहिए, इसको बाद में रखना चाहिए। तो ये सब थे वे जो उन्होंने छुपाया था, चोरी किया था, कि मतलब जैसे उन्होंने रखा था वैसे ही मैं भी रख देता हूँ। तो ये सब कुछ कर, इसीलिए जब भी कुछ पढ़ो ना तो डाउट क्लियर करके पढ़ो, यही रीज़न है। ये डाउट उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने भी जैसे न्यूलैंड्स ने कहा था भाई सेम प्रॉपर्टीज है इसीलिए ग्रुप में रख रहे हैं, तो इन्होंने भी कहा कि सेम प्रॉपर्टीज है इसलिए ग्रुप में रखें। लेकिन बेचारा फंस गए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी जो इन्होंने नहीं बताया। पीरियोडिक टेबल तो बनाया, उसमें बताया कि सारे के सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के आधार पर सजाए गए। सबका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप में सेम होना चाहिए। भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका प्लेस मैं खाली छोड़ रहा हूँ, उनका प्लेस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे। उन्होंने क्या क्या नहीं बताया, लिमिटेशन उनका क्या सब था। उनका लिमिटेशन ये था कि किसी भी एलिमेंट्स का दो फॉर्म हो सकता है जिसको आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 को ट्रिटियम कहा जाता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, C12, C13, C14। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, Cl35, Cl37। तो आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने बताया। डॉबरेनर और न्यूलैंड्स ये दोनों जो है हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 में अरेंज किया था, ये ग्रुप नंबर 1 में अरेंज कर दिया। कि हाइड्रोजन का प्लेस आपने कौन से बेसिस पर फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट पीरियड में आपने रखा, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनके थ्योरी से बाहर थी, जिस कारण से इनको लिमिटेशन मिल गया और फाइनली जाकर के इनकी थ्योरी भी फेल हुई।
उसके बाद देखो मेन क्या होता है, सब लोग एक ही पैटर्न से जब सवाल बनाते हैं ना तो सबको एक जगह यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सबका गलत हो रहा है। अगर पैटर्न को चेंज कर दे, दूसरे स्टाइल से बना दे, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे तुम लोगों ने टेंथ में ही हो ना, तो अलजेब्रा का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था 2 लीनियर वाला, उसको 3-4 मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक आता था एलिमिनेशन मेथड, एक आता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मेथड ही चेंज करके मानो तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से नहीं बन रहा तो तुम उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मेथड चेंज करोगे हो सकता है बन जाए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए मोस्ले साहब, इन्होंने मेथड चेंज कर दिया, बोला भाई मैं एटॉमिक मास को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं मानूंगा। अगर एटॉमिक मास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता तो डॉबरेनर से लेके मैंडलीव तक फेल नहीं होता। मैं एटॉमिक मास को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं मानता। तो हल्का मच गया साइंटिस्टों में, भाई इतने जो डॉबरेनर थे, न्यूलैंड थे, मैंडलीव जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, वो सब गलत हो गए, तुम सही हो गए। यस, बहुत सारे ऐसे अभी भी देखना, कुछ न्यू जनरेशन होते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को फेल करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को भी एक बिहारी ने चैलेंज किया था, पता है, वशिष्ठ नारायण सिंह उसका नाम सुने हो? कुछ दिन पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज किया। तो कुछ न्यू जनरेशन होते हैं जो अलग मेथड पे मतलब अपने आप को प्रूफ कर देते हैं कि दे आर राइट। तो वैसा ही एक न्यू जनरेशन का स्टूडेंट था मोस्ले साहब। मोस्ले साहब ने कहा कि मैं आप सबके जितने भी थ्योरी आप लोगों ने दिया वो सारे थ्योरी को मैं रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं फेल कर सकता हूँ, लिमिटेशंस आपकी थ्योरी में निकाल सकता हूँ कि आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया, वो नहीं एक्सप्लेन। हर स्टूडेंट के अंदर में लिमिटेशन, हर आदमी के अंदर में लिमिटेशन। जो अच्छा गा सकता है हो सकता है वो अच्छा डांस नहीं कर सकता, जो अच्छा पढ़ सकता है वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता। बहुत सारे लिमिटेशन है हर आदमी के अंदर। तो थ्योरीज में भी जो पॉस्टुलेट्स होते हैं, जनरली पॉस्टुलेट्स इसलिए डेवलप होते हैं कि एक नया थ्योरी बन सके। तो साइंटिस्ट उससे ज़्यादा समझदार हो जाता है, उसके अंदर भी लिमिटेशन निकाल दिया। तो ये लिमिटेशंस निकाल दिया हमारे मोस्ले साहब। उन्होंने कहा सर आपने हाइड्रोजन का पोजीशन कैसे बता दिया कि ग्रुप नंबर 1 में होगा। दूसरा, आपने आइसोटोप्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तीसरा, आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को, जब आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास दिया है तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए, तो आप तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिक्स करके आपने बता रहे हो, फेल हो गए। इन्होंने एक नया खोज किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। एटॉमिक नंबर का अगर डिफाइन कोई पूछेगा तो न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर। अगर चार्ज एलिमेंट होगा तो भी जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन घट सकता है, बढ़ सकता है, सोडियम प्लस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, लेकिन सोडियम के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कभी नहीं बदलेगा। वो बदलता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। जो सन के अंदर में होता है, हाइड्रोजन हीलियम बन जाता है और हीलियम हाइड्रोजन बन जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुने? जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब उतना ज़्यादा पावर। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो एक चैप्टर ही है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आप जो सबसे बड़ा क्वालिटी बता रहे हो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप बता रहे हो कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए। चलो, साइंटिस्ट एक नया चीज लेके आता है और बाकी जितना पीछे वाले साइंटिस्ट ने किया है उसी को वहां पर कॉपी पेस्ट कर, सारे सब ग्रुप्स को रिमूव कर दिया और उन्होंने 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप बना दिया, 7 पीरियड्स बना दिए। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने सजा दिया। और जो क्वेश्चन मेंडलीव से पूछा था कि हाइड्रोजन का फर्स्ट पीरियड क्यों रखे हो, उसके पास भी वही क्वेश्चन आके अटक गया कि भाई आप भी क्यों रख रहे हो फर्स्ट पोजीशन में। तो उसके पास जवाब था एटॉमिक नंबर 1 है इसीलिए। तो मेंडलीव के पास भी तो जवाब था, उसका एटॉमिक मास 1 है इसलिए रख देना चाहिए। हाइड्रोजन इज स्टिल a confusion element,
उसका ग्रुप नंबर 1 में स्पेस होना चाहिए या ग्रुप नंबर 17 में, अभी तक साइंटिस्ट इसके पीछे काम कर रहे हैं। एमएससी में एक बुक आता है, मास्टर इन साइंस जब करोगे तो हाइड्रोजन का एक बुक आता है, इतना मोटा बुक, जो स्पेशली हाइड्रोजन पे रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, उसका इतना मोटा बुक। मुझे एक बार सौभाग्य मिला, मैं उस बुक को गया पढ़ने, तो हाइड्रोजन का मतलब डेवलपमेंट, डिस्कवरी कब हुआ था, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे कैलकुलेट किए थे, उसके साथ सारे एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स कैसे था, क्योंकि 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोजन, तो वो पढ़ा हुआ था। बीएससी में भी हाइड्रोजन के बारे में था, एमएससी में भी जितना पढ़ा था उतना पढ़ा था, लेकिन पीएचडी वाला जब मैं बुक गया पढ़ने के लिए, तब मैं सचमुच में मैं भी स्तब्ध रह गया और मैं भी सोचा कि नहीं सही है, हाइड्रोजन का प्लेस फर्स्ट में होना चाहिए या 17th में होना चाहिए, ये अभी भी साइंटिस्ट क्लियर नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि भाई एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा उस अरेंज पर, तो फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन। इसीलिए अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले साहब ने दिया था, जिसमें 18 ग्रुप्स बनाया था, 7 पीरियड्स बनाया था, और हर पीरियड में जो एलिमेंट्स थे सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे। नील बोर का जो कंसेप्ट था कि फर्स्ट सेल में 2n² वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तुम लोगों को पता होगा कि K में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 है। तो वो कंसेप्ट चालू था, लेकिन तुम देखना फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, सेकेंड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32, सेवन्थ पीरियड में 32। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो फिर इसका न्यूलैंड्स का थ्योरी फेल होगा। सब टोटल को काउंट करोगे 1 1 8 हो जाए। अभी तक 118 ही एलिमेंट है। कोई एक बच्चा बता रहा था सर 119वां आ गया, वही बता रहा था। कहाँ से सुना, क्या नाम बता? क्या यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम नहीं, कब प्रोनाउंस करना नहीं आता, लेकिन स्पेलिंग याद है, ढूंढ लेना, अगर मिला हो तो मेरे को भी बताना, ठीक है? तो मान लो ऐसे अभी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि 118 एलिमेंट। अरे एक बात बताओ, इंडिया का जनरेशन अभी कितना है? पॉपुलेशन पता है कितना है? 125 करोड़ 2011 में। हर एक 10 साल के बाद सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। तो 2011 में 125 CR, उसके बाद जब हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उस समय में 130 CR हो गया। 2014 की बात कर रहा हूँ। अभी मोर देन 140 CR है हमारा इंडिया का पॉपुलेशन। क्या बता सकते हो कि 140 ही रहेगा इंडिया का पॉपुलेशन? आज भी तो बढ़ेगा ही ना। आज तुम लोग 10th में हो, कल 9th वाले 10th में आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद 8th वाला था वो 10th में आ जाएगा, वो तो बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन स्टॉप नहीं। उसी तरह से एलिमेंट्स का भी डिस्कवरी चालू है, बढ़ते जाएगा। अभी तक साइंटिस्टों के पास इतना दिमाग था, 118 एलिमेंट्स ढूंढ लिया, पूरा पीरियोडिक जितना भी मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी, सारे एलिमेंट्स को खोज करके उसके स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर। अभी कुछ नए साइंटिस्ट, तुम में से भी कोई नया साइंटिस्ट बन सकते हैं, जैसे ये क्या नाम है तुम्हारा? हो सकता है ये नया साइंटिस्ट हो, 120वां एलिमेंट इसी का खोज हो सकता। नो वन नो। 4 नहीं आए हैं, वो तो 113, 115, 117 वो 2016 में ही आया था। 2019 में उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। 2016 में एलिमेंट का अनाउंसमेंट हो चुका था। 2019 में वो तीनों साइंटिस्ट को, तीनों के तीनों कंप्यूटर केमिकल इंजीनियर, याद रखना, कंप्यूटर केमिकल इंजीनियर समझते हो तुम लोग? खाली कंप्यूटर इंजीनियर समझते हो और केमिकल इंजीनियर। कंप्यूटर केमिकल इंजीनियर, केमिकल रिएक्शन ऑन कंप्यूटर। तुम बोलोगे सर उसको तो एनिमेटेड वीडियो बोलते हैं, नहीं, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो वहाँ पे स्पेसिफाई होता है। अगर HCl को NaOH से रिएक्शन करोगे वहाँ पे बता देगा कि ये सॉल्ट है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सॉल्ट का वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंप्यूटर इंजीनियर। समझ में आया? 2019 में वो तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज की कीमत पता है? एक नोबेल प्राइज की कीमत है $1000 मिलियन। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज अभी प्रेजेंट। वो बढ़ते रहते हैं, अगर 70 तो कम से कम रहेगा। तो
समझ जाओ 1000 मिलियन डॉलर जितनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे उतना अगर साइंटिस्ट बन के एक एलिमेंट खोज कर दिया फिर बोलोगे सर वो भोगेगा तो तुम्हारा न्यू जनरेशन। उसके लिए पागल सचमुच में बनना पड़ता है, साइंटिस्ट के लिए पागल बनना। पागल मीन्स इन द सेंस ऑफ यू हैव टू गो थ्रू इट। 10th में भी बहुत सारे, 12th में तुम लोगों ने सुना था 720 आउट ऑफ 720 नीट में लाया था शोएब ने, और एक अनुष्का नाम था कि अनिष्का, क्या नाम था, क्या वो तो शोएब था ना, और एक लड़की दिल्ली की थी उसने भी 720 में 720 लाया। तो सोचो वो लोग कैसे पढ़ाई किया होगा कि नीट जैसे टफ एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स। कभी IIT में सुना है फुल मार्क्स मिलते? कोई नहीं ला पाएगा, गारंटी देता हूँ। 360 का ही होता है, 356 ला सकता है, 360 नहीं लाएगा। HC वर्मा ने कहा, बड़े बड़े जो फिजिक्स के राइटर, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स देखियो, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है HC वर्मा, उनका मैं स्टूडेंट रह चुका, पटना में पहले पढ़ा था, उनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ। उनका एक अपना YouTube चैनल भी है, देखना, इस बार लॉकडाउन में उन्होंने बच्चों के लिए खोला। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए, डेवलपमेंट हुआ, और मोस्ले साहब पे जाकर के वहाँ पे स्टॉप हो गए, क्योंकि मोस्ले साहब ने जो कहा था कुछ यूनिक कहा था बाकी साइंटिस्ट के कंपेयर। मोस्ले साहब ने कहा कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स लिथियम से लेकर के नियन तक, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट सोडियम से लेकर आर्गन तक, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स पोटाशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम स्टार्ट होता है वहाँ पर 21 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। सब लोगों के पास NCERT टेक्स्ट बुक है, उसमें देखो तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें देखना फोर्थ पीरियड से स्कैंडियम स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट स्टार्ट होता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है फर्स्ट सीरीज के। और उसके बाद से फिर वापस पी ब्लॉक में आ जाओ, गैलियम है, गैलियम 31, 32 जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है 14th ग्रुप में, नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक 15th ग्रुप में है, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है ऐसी, 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, और 18th ग्रुप में नियन, आर्गन, क्रिप्टन होगा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि फोर्थ पीरियड में टोटल 80 है। फिफ्थ में भी उन्होंने कहा रूबिडियम से लेकर के क्रिप्टन तक, रूबिडियम से लेकर के क्रिप्टन तक उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और बोला 18 एलिमेंट्स। फिर 6th पीरियड में ग्रुप नंबर 3, वो स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है वहां पे देखना 6th पीरियड La लिखा होगा, लेंथेनम, लेंथेनम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनम के बाद से F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो वो लेंथेनम के पास नीचे में बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 में उनको 14 एलिमेंट्स अरेंज करना पड़ता, इसीलिए F ब्लॉक को नीचे में 2 टेबल बना करके रख दिया। देखो नीचे में है F ब्लॉक एलिमेंट्स, 14 वाले 2 ग्रुप होंगे, वो दोनों के दोनों अगर कोई पूछे कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है तो बना, पहला वाला जो ग्रुप है 6th पीरियड 3rd ग्रुप, और दूसरा वाला जो है 7th पीरियड 3rd ग्रुप। समझ में आया? F ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई पूछे विच ग्रुप एलिमेंट, लुथेनियम जो लास्ट एलिमेंट है देखना, La से लेकर के Lu तक, लैंथेनम से लेके कहाँ तक है, लुडेंशियम तक, ये जो एलिमेंट है लास्ट में पूछेगा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेम 6th पीरियड 3rd ग्रुप। वो दोनों के दोनों जो है ऊपर वाला ग्रुप 6th पीरियड, नीचे वाला ग्रुप 7th पीरियड, ग्रुप नंबर 3rd ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अरेंजमेंट किसका था? मोस्ले साहब का। मोस्ले साहब ने इस तरह से एक नया पीरियोडिक टेबल का जन्म किया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर देने के बाद आया ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जानते हो तुम लोग? मॉडर्न ट्रेंड्स क्या होता है? मॉडर्न ट्रेंड्स जो ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ, हाँ, जो ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है पता है तुमको? क्या चल रहा है? अभी किसान आंदोलन चल रहा है ट्रेंड्स में ना,
फार्मर प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं। सर हाँ जी, सर ये मेंडेलेव ने उसका बेरिलियम का वो मास क्यों कम होगा? मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बावजूद भी कम। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग? अभी तो 9 तेरे अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए? हाँ, एक और चीज़ तुम लोगों को भी सिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 से मतलब 20 तक एलिमेंट्स सब लोगों को याद है। एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक तो जनरली सबको याद होगा। एटॉमिक मास कितने का याद है? 1 से 20 तक का मास याद है? एटॉमिक मास नंबर नहीं बोल रहा, डबल करके आता है। कोई में सिर्फ डिफरेंस होता है, एक का डिफरेंस होता है। 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैं दोनों लिख के बता देता हूँ। कभी अगर ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो उस एलिमेंट्स का ट्रिक, जैसे इसने कहा डबल और ट्रिपल, उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद चलो इतना तक ही लिखते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसमें तुम कोई भी रूल लगा लो नहीं चलेगा। हाइड्रोजन इज ए यूनिक एटम, उसमें तुम कितना भी दिमाग लगा लो, हाइड्रोजन में कोई रूल किसी भी साइंटिस्ट का नहीं चला, तो हम लोग तो बच्चे कहाँ से चलते हैं। सेकेंड से चालू होता है। इन्होंने कहा जितने भी इवन नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर, हाँ याद रखना, इवन एटॉमिक नंबर, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इवन वाले के साथ, और जितने भी ऑड एटॉमिक नंबर है उनको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1। इस 20 तक में भी तुमको 5 से 7 ऐसे एलिमेंट है जो एक्सेप्शन है, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा इवन है या ऑड है, राइट। यहाँ पे ये ऑड है तो 1 2 जा 2 + 1 3 होना चाहिए था, तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन होता है। ये इवन नंबर है, एटॉमिक मास 4 होता है, इन्होंने फॉलो कर। 3 ऑड नंबर है, 3 2 जा 6 + 1 7, इन्होंने भी फॉलो कर। बेरिलियम 8 होना चाहिए लेकिन 9 होता है साहब, तो ये एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा। बोरॉन ऑड नंबर है, 5 2 जा 10 + 1 11 होना चाहिए, कितना होता है पता है? 10.11, सही। कार्बन का 6 2 जा 12 होना चाहिए, 7 2 जा 14 115 होना चाहिए, 14 होता है, एक्सेप्शन। 8 2 जा 16 होना चाहिए, 9 2 जा 18 119 होना चाहिए, 10 2 जा 20 होना चाहिए, 11 2 जा 22 + 1 23 होना चाहिए, 12 2 जा 24 होना चाहिए, 13 2 जा 26 + 1 27 होना चाहिए, 14 2 जा 28, 15 2 जा 30 + 1 31 होना चाहिए, लेकिन 30 होता है, एक्सेप्शन। 16 2 जा 32, 17 2 जा 34 + 1 35 होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा है 35.5। आर्गन का 18 2 जा 36 होना चाहिए, 40 है, एक्सेप्शन। पोटेशियम का 19 2 जा 38 + 1 39, सही है। कैल्शियम का 22 2 जा 40, समझ में आ गया, ये सब सही है। जितने के अंदर डैश दिया हुआ है, डबल डैश, दे आर एक्सेप्शन। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का किसका? फास्फोरस का कितना है? तब तो सही है, ये फॉलो कर रहा है। 31 है, कितना एक्यूरेट 31 है, तो सही है, तब ये फॉलो कर रहा है 31। बाकी जितने के नीचे में डैश दिया हुआ है वो सब एक्सेप्शन है, जो रूल फॉलो नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं कितना भी समझा दो, मोबाइल नहीं लाना है क्लास में, लेकिन भी लाए तो रूल फॉलो नहीं करते, उसी तरह ये एक्सेप्शन है ना। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से एलिमेंट का एटॉमिक मास लर्न हो जाएगा।
समझ में करना क्या है? इवन एटॉमिक नंबर ट्वाइस और एटॉमिक नंबर ट्वाइस प्लस 1। समझ में आ गया? इतना एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तो याद रह सकता है ना। जिस तरह से एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स नेम 1 to 20 याद है, एटॉमिक मास की थोड़ा ज़रूरत है, याद कर लेना चाहिए। अब आ जाओ हम लोग ट्रेंड्स के ऊपर में जाएंगे। क्या हुआ बेरिलियम के साथ बताओ? कोई देखिए। हाँ, बेरिलियम का क्या 15 है? क्या बात कर रहा? 14.06 से 9.01। तो 9 तो है उसको। सर प्रॉब्लम क्या है बेरिलियम के साथ? झगड़ा किया था क्या? बोल बेरिलियम से क्या मगजमारी होती पता? भाई 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एक्सेप्शन है, खाली 4 2 जा 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 9 होता है। इसमें तुमको क्या मगजमारी? भाई 5 है, इसके बाद इसका एटॉमिक मास 11 है, तो इससे पहले ही तो है और इसके बाद तो है, तो तुमको मगजमारी क्या है? कोई मगज? अब हो गया कंफ्यूजन क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता? यस ना पोटासियम वो तो है, लेकिन दूसरे में अगर देखें ना तो फिर एक ज्यादा ही आता है, तो फिर एक ज्यादा आना और एवरेज। बेटा देखिए मोटरसाइकिल नहीं है जो एवरेज जो है निकल जाएगा गाड़ी का। अगर तू 40 में चलाए या 50 में चलाए और दोनों को मिक्स करके एवरेज निकाल दे, 45 का एवरेज चला। ये एटॉमिक मास का सवाल है। आने वाले नए जनरेशन उसको स्टडी करेंगे। तो अगर कुछ गलत दे दिया तो फिर होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो उन्होंने सही दे दिया होता डॉबरेनर ने, और डॉबरेनर 3-3 करके ही ग्रुप बनाता, तो आज 118 के कितने ग्रुप होते पता है तुम? अब समझ ले, दिमाग लगा ले। 118 एलिमेंट्स हैं, 3-3 करके ग्रुप बनाया था उन्होंने ट्रेड्स लॉ में। अगर उनका लॉ सही हो जाता फर्स्ट टाइम में, दूसरे साइंटिस्ट को मौका नहीं मिलता। समझ रहा बेटा? कितने ग्रुप होंगे? मोर देन 53 या 150 होता है। कौन 97 के चला? 43 या 120 होता है। 40 ग्रुप्स बनता है, पता है ना? 40 ग्रुप्स बनता है। 3-3 करके एक ग्रुप बना रहे थे, तो 43 या 120 40 ग्रुप्स बनता है। ये तो बेचारा 18 पे आके सिमट। ये तो पीरियोडिक टेबल का लेंथ एंड ब्रेथ जानता है। मेरे दोनों हाथ से ज़्यादा लंबे होते हैं, कानून के हाथ की तरह। तो इसीलिए जो है देखो, कोई भी साइंटिस्ट जो कुछ देता है, आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा अच्छा थ्योरी है, दुनिया में सबसे तेज कौन है पता है? लाइट। सही कहा। और लाइट से भी ज़्यादा रेज, जो फास्टेस्ट रेज आया था, न्यूट्रिनो रेज। 2011 में उसका डिस्कवरी मोर देन 180 साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन फिर भी न्यूटन आइंस्टाइन के थ्योरी को फादर मानते हुए उनके थ्योरी कभी भी रॉन्ग नहीं। सनलाइट से ज़्यादा स्पीड दुनिया में किसी का ना हुआ है ना होगा, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। लेकिन नए जनरेशन के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था कि ही वॉज रॉन्ग। लेकिन फिर उन्होंने प्रूफ किया ही वॉज रॉन्ग, उसके कुछ लिमिटेशंस निकाल के उन्हीं का थ्योरी फेल कर दिया, आइंस्टाइन का जैसा का तैसा। आइंस्टाइन ने कहा था तुम्हारे माइंड से भी ज़्यादा स्पीड सन का स्पीड है। हम लोगों का माइंड होता है ना, देखना गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो जितना दूर तक हमारा आँख जाता है उतना दूर भले हम डिस्टेंस ट्रेवल करें या ना करें, लेकिन हमारा आँख उससे ज़्यादा स्पीड चलता है। हमारे बाइक से ज़्यादा स्पीड हमारा आँख चलता है। वो हमारा माइंड होता है जो हमारे आँख को इंस्ट्रक्ट करता है कि तू देख वहाँ पे कुछ है तो नहीं, सडनली ब्रेक तो नहीं मारना पड़ेगा। माइंड वैसे कहा जाता है इस दुनिया में सबसे तेज माइंड है। साइंटिस्टों को कहा जाता है कवि, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, किसको कहा जाता है कवि हिंदी में? पोएट। राइट, पोएट को कहा जाता है। तो एक स्टेटमेंट था हिंदी में, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। रवि का मतलब सन, जहाँ पे सन का लाइट नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर पोएट का माइंड पहुँच जाता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी पोएट की मर्जी। अब आ जाइए हम लोग कुछ ट्रेंड्स में चले। इतना तक में किसी को कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट? यस, क्या बोल रहे बेटा? देखो ये लॉजिकल थिंकिंग, क्या नाम है बेटा तेरा? हरिओम पाठक जी का एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आया है, आप लोग भी सुने। देखिए माइंड का लॉजिकल थिंकिंग इसी को कहता है। अगर अर्थ में से ना कोई एलिमेंट्स मिले,
वीनस, मार्स या फिर अलग जो प्लेनेट है उसमें से अगर एलिमेंट्स मिलेगा तो क्या उसके लिए अलग प्लेनेट बनाना, पीरियोडिक टेबल बनाना? योर आंसर इज नो। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लगभग हर प्लेनेट्स में ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डायमंड जो है, तुमको पता है डायमंड का सबसे बड़ा ध्यान कौन से प्लेनेट पे है? तो मान लो उस प्लेनेट का एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल हमारे पे है तो समझ लें मतलब सारे प्लैनेट्स को मिलकर के कोई भी प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन वो एलिमेंट कौन से एलिमेंट से बना। हमारा अर्थ क्रस्ट में अगर तुम लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी ऑफ अर्थ जो हुआ था सबसे पहले कौन सा थ्योरी आया था पता है? बिग बैंग। उसके जो मिनरल सबसे पहले हमारे अर्थ में आया, सबसे पहला अगर कोई केमिकल आया था तो वो था मिनरल, खनिज लवण। ऊपर में आइसबर्ग जब पूरा अर्थ था उसके बाद मिनरल्स आए थे, जिस मिनरल्स ने केमिकल रिएक्शन किया, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद अर्थ में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा बैक्टीरिया आया था। उसका नाम क्या था पता? क्या नाम था? बायोलॉजी वाले को पता होगा, बायोलॉजी एक्सपर्ट। हाँ, मैं भूल रहा हूँ मुझे उस बैक्टीरिया का नाम, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा था, इतना मज़ा आया मुझे, मतलब बहुत ही एकदम यूनिक वीडियो था। ऐसा समझ में आया कि अर्थ का डिस्कवरी ऐसी हुई। और एनर्जी सब कुछ का रीज़न है। एनर्जी के कारण ही तुम लोग जितना भी पढ़ते हो ना, दिस नॉलेज इज योर एनर्जी। ये एनर्जी को तुम बोर्ड के पेपर में स्प्लिट करोगे, तुम्हें मार्क्स आएंगे। अगर मान ले बोर्ड में कोई फेल भी हो गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास है, वो नॉलेज को कहीं और भी स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में जिसको 10 CGPA आ गया वही टॉपर, लाइफ का भी टॉपर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जिनको 12th में 99% आए, लेकिन आज वो लाइफ में कुछ नहीं। टॉप के साथ लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन जो होता है नॉलेज का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 89% लाते हो, 92% लाते हो, चलेगा, बट यू शुड नो योर नॉलेज एप्लीकेशंस इन योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज मोस्टली हैज गिवन, उन्होंने भी एटॉमिक नंबर तो दे दिया, लेकिन उसका यूजेस बताया उन्होंने कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इसका यूज होगा। क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स होगा? पीरियोडिक ट्रेंड्स होगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल में तुम लोगों को सिर्फ दो चीज पढ़ना है, एक है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है तुम लोगों का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा? तुम लोगों को पता है कोसेंट्रिक सर्कल्स पढ़ते हो सब लोग? कोसेंट्रिक सर्कल्स पढ़ते हो? ऐसे होते कोसेंट्रिक सर्कल्स, बताओ तो। इसी को बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। इसको हमारे केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। केमिस्ट्री, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, सो इट इज कॉल्ड, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसको केशल बोलते हो, और ये सेकेंड एनर्जी लेवल एम। क्या बोल रहे हो? उसके बाद थर्ड पीरियोडिक टेबल, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया एनर्जी लेवल। तो कहा कि फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स में फर्स्ट सर्कल का रेडियस कुछ और होता है, दूसरे का ज़्यादा या कम, तीसरे का ज़्यादा है। तो इस तरह से रेडियस जितना ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा, रेडियस बढ़ते जाए। तो ये रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से, जैसे तुम फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जाओगे तो सेकेंड पीरियड में 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे, थर्ड में जाओगे 3, 7 तक जाओगे 7 हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि एटॉमिक रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस जो है, कोसेंट्रिक रेडियस, वो बढ़ते जा रहा है। मतलब इन्होंने कहा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते हैं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट आए इधर, क्योंकि उसमें जैसे सेकेंड पीरियड में जाओगे तो सेकेंड पीरियड में तुम्हारे पास 2 ही ऑर्बिट रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। जैसे सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था तो इतना डिस्टेंस था, और जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इसको भी खींचना, और न्यूक्लियस को तो दोनों के ऊपर में अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। अगर मान लो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। उसके बाद तुम लोग देखना फर्स्ट दो पीरियड जो है जिसको अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए उनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। तो ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल और बाकी पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरली नॉन मेटल कहा जाता है। तो ऐसा देखा गया कि ग्रुप में पीरियड में अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम से लेकर के नियन की तरफ जा रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटते जाएंगे। मतलब लिथियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक, बेरिलियम लिथियम से कम, उससे बेरिलियम से कम, उससे आ जाओ इस साइड आ जाओ। उसके बाद बोरन जो है मतलब बेरिलियम से कम, बोरन के बाद कार्बन, कार्बन नॉन मेटल में आ गया। मतलब ये तीनों मेटल थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तुम देख रहे हो, इधर से हम बढ़ रहे हैं तो घट रहा है और इधर नॉन मेटल बन जा रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मेटल का एक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मेटल का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रो निगेटिव। नॉन मेटल का कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रो निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेना और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देना। लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट से या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो। तो मेटेलिक कैरेक्टर में तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो भी मेटल 7th पीरियड का होगा, लास्ट ग्रुप का होगा, उनका एटॉमिक साइज तो बहुत बड़ा होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन बहुत कम हो। जैसे मान लो लास्ट बेंच पे वो लड़का है और फर्स्ट बेंच पे ये लड़का है, तो मैं इसको कंसंट्रेशन देख रहा हूँ, ये मेरे आँख के सामने है, अगर ये कुछ इधर उधर करेगा मैं तुरंत इसको डालूंगा। लेकिन लास्ट लड़का वाला मोबाइल निकाल के फेसबुक चला रहा है कि व्हाट्सएप चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं उसको नहीं देख पा रहा तो मैं उसको साथ कुछ नहीं करूँगा, राइट। उसी तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बहुत ही लूजली बॉन्डेड होता है। तो लूजली बॉन्डेड होने के साथ वो इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें से रिमूव होता है। तो वो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और जो कम मेटेलिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। होते जैसे ये लड़का जो यहाँ पे मस्ती नहीं कर सकते, वो लड़का आकर मस्ती कर सकता होगा या नहीं होगा। सब कुछ तुम्हारे क्लासरूम में एक पूरा पीरियोडिक टेबल छिपा है। एटॉमिक रेडियस फर्स्ट बेंच पे मेरा यहाँ से लेके वहाँ तक का लेंथ जो होगा सेकंड स्टूडेंट का बढ़ जाएगा, थर्ड का और बढ़ेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 पीरियड है। देखिए यहाँ पूरा का पूरा क्लासरूम ही हमारा चैप्टर 5 है। 118 एलिमेंट्स, सबके सबका एक अपना अपना यूनिक डीएनए है, यूनिक प्रॉपर्टी। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ ग्रुप में आ जाते हैं तो ये सारे ग्रुप, ये सेक्शन ए के स्टूडेंट, सेक्शन बी के स्टूडेंट, पूरा नेचर ही मतलब जितना तुम देखोगे नेचर में जितना कुछ भी होता है सब कुछ इस पीरियोडिक टेबल में दिखता है। अब अगर तुम लोगों को चैप्टर नंबर 5 से कुछ भी डाउट हो, तुम्हारे पास 15 मिनट्स का टाइम है, तुम मुझसे पूछो। यस मिस्टर पार्थ, हाँ नाम मानव जी बताइए। What is the difference between normal gas and inert gas? मानव जी का एक क्वेश्चन है कि सर इनर्ट गैस और नॉबल गैस में क्या डिफरेंस है। इनर्ट गैस नाम सुने हो तुम लोग? किसको बोलते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन को हम लोग इनर्ट गैस। नॉबल गैस किसको बोलते हैं? नॉबल गैस भी उसी ग्रुप को बोलते हैं। लेकिन इसका एक क्वेश्चन है जो 11th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भले बच्चा है। अब मैं तुमको बता देता हूँ, नॉबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, चाहे वो स्टेबल हो अनस्टेबल। पूरे इनर्ट गैस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन
ये सब इनर्ट गैस है, जिसमें ये दो ऐसे एलिमेंट है जो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड नहीं है। आर्गन से लेके रेडन तक ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना। तो ये सब जो हो गए, ये हो गए तुम्हारे इनर्ट गैस और ये हो गए तुम्हारे नंबर। लेकिन जनरली 10th लेवल पर अगर पूछ रहे हो, सबके सब इनर्ट गैस, सबके सब नंबर। समझ में आया? 10th और 11th में बहुत फर्क है। तुम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन बनाया होगा, बनाया था या नहीं बनाया था? 10th में भी बना रहे हो। डिफरेंस है या नहीं दोनों का बनाने का तरीका? अगर तुमको कोई 7th वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम 10th वाले मेथड से सॉल्व करो, है ना? नहीं, क्योंकि तुमको 10th का इक्वेशन आ गया बनाना, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन 7th का बच्चा वो मेथड समझेगा, इसीलिए 10th का बच्चा ये नहीं समझेगा। 10th का बच्चा इतना ही समझेगा, सब के सब इनर्ट गैस, सबके सब नंबर। समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी को पूरे चैप्टर नंबर 5 से? ब्लू टी शर्ट, एनी डाउट बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ कोई इसी को कोई डाउट नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? क्या नहीं सुना? जोर से बोलोगे। समझ में आया कुछ बेटा? सिर्फ मैंने लेक्चर दिया, थोड़ा थोड़ा चलो बेटा, सब पंकज दास के ज्यादा फैन। और कोई गर्ल्स में कौन से ऐसे गर्ल्स है जिसको बिल्कुल समझ नहीं? कितने ऐसे गर्ल्स है जिनको थोड़ा थोड़ा समझ? तो सब गर्ल्स को पूरा समझ में आ रहा? मतलब गर्ल्स टॉपर वैसे भी हो रहे हैं, देखना है इस बार जितने टॉपर राइट। सर कार्बन को सेगमेंट क्लास में क्यों नहीं